So, good morning students, myself Professor P.P. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 42. Okay guys, so in the last lectures, we discuss the different type of the fins. Okay, we discuss the different type of fins you see on the diagram: taper fins, rectangular fins, then annular fins, then pin fins. So these are the different type of the fins. Okay boys, then we have to prove? We have to prove the derivation of the spin. Okay, we have to prove the one derivation for a rectangular fin in terms of the theta. Theta is equal to c1 e to the power mx plus c2 e to the power minus mx in the exponential forms. Okay, then we have to see the some applications in our previous lecture. These are the applications. Okay, and these are the fins. If you observe in diagram, these are the fin shapes. Yes or no? Yes. So these are the fin shape, and from the fin the heat is dissipated from system to surrounding, guys. Okay, and we know the definition of the fins. What is the definition? The extended surface from an object, that is called as the fins, and it is used to transfer the heat, means to increase the rate of heat transfer from the fin, means from this surface into the surrounding with the help of this fin, guys, means to increase the convection rate of heat transfers that will be achieved with the help of fins. Okay, so today we know in last lecture we discussed the rectangular fins, and we know the three type cases given in our syllabus. So today we have to discuss the first case. Okay, and what is the diagram? The diagram of today's case is this ones. Okay, and I draw this diagram now. Okay, so you see here, guys, I just draw this diagram on the boards and we start these derivations. So this title is, I am write down case 1. Case 1 title is what is? Heat dissipations. Heat dissipations from an infinite long fin. Okay, this is our today's titles. What is the title? Our today's title is the heat dissipation from an infinite long fin. Long fin means what is the length? The length of the fin is infinity. Infinite means what is the length? We have to use the fin. It is infinity length of a fin, guys. Okay, so let's I show this diagram. This is the diagram of this infinite long fin, and now I draw this diagram on the boards. So you just see here. So before starting this diagram, infinite spin, you see here, guys, what is the formula we have to prove? We have to prove this formula in our previous lectures, standard form of the equations. What is the equations? Theta is equal to c1 e to the power mx plus c2 e to the power minus mx. Suppose equation number 1. So this graph in what is in this formula in it is exponential form. Okay, theta means nothing but what is the temperature difference. We know this theta. The theta is nothing but what is T minus TA, right? X means nothing but the x directions of a fins. Okay, means one dimensional, right? C1 and C2 is the arbitrary constant. We know the value of the m, which is under root pH upon ACS K ACS, right?
and this graph in which form? In exponential form of a heat dissipated from the fin into the surrounding. This what is the exponential form of the graph with respect to the temperature of the wall and fins. Okay, so what type of the graph we have to getting here? Exponential graph, and we know that at the base the temperature is very maximum and in surrounding the temperature is TA. So let's I draw this graph and figure. So you see guys here, so here I draw this graph. Look at this graph guys. Temperatures T, okay, versus x direction of a fins. I had drawn the fin diagram here. Okay, this is the infinite length of a fin. Okay, infinite length. So I draw the very short diagram here. Suppose you assume the length is what is infinite. Yes or no? Yes. So I draw this diagram here. The length is what is infinite. So infinite length means we can't measure the length. Yes or no? Yes. So here is what is the value of x? X is equal to 0 is here guys. Here is the value of the what is x? X is equal to L, and L is equal to what is infinity for this length of a fins. This is x direction. This is the temperature. So at the base of the fin, what is the temperature guys there? T0. So there is a maximum temperature. So I show is here. This is the temperature is T0. The temperature T0, we know that. Where is the temperature T0? The temperature T0 is the at the wall surface, and this is the connection. So at the base of the fin, the temperature T0, and which is maximum. Suppose 80, 90 और 1000 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ से हीट कहाँ जाएंगे बच्चों? भी सराउंडिंग में ट्रांसफर होंगी. कौन कौन से मोड से? एक कंडक्शन से और दूसरा कन्वेक्शन से. तो बेस का जो टेम्परेचर है वो कैसे रहने वाला है? ज्यादा रहने वाला है. उसको हमने कैसे शो किया है? T0 से. ये जो अलॉन्ग y एक्सिस है टेम्परेचर है, और अलॉन्ग x एक्सिस में हमारी क्या है? इसकी ये थिकनेस बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है. किसकी? फिन की. अलॉन्ग द विच डायरेक्शन? x डायरेक्शंस. So this is the thickness, this is the temperatures. Okay. So what is the value of the T is here? T is equal to TA. Means x is nothing but the infinity. So at x is equal to 0, what is the value of the T? T is T0 at the base. When x is 0, so temperature is T0. But x is infinity, then temperature is what is? Ambient temperature or atmospheric temperatures. And what type of the graph we have to getting here? We have to getting this exponential graph in this way. Yes or no guys? Yes one. This is the temperature profile. क्योंकि जब फिन में से हीट ट्रांसफर होगी कंडक्शन से और कन्वेक्शन से, तो उसका टेम्परेचर जो है बच्चों वो ज़्यादा होगा क्या? नहीं, वो कम कम होते जाएगा. क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा टेम्परेचर बता दिया है? एम्बियंट. अब यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90 और सपोज 150. तो 150 कहाँ पे रहेगा? इसके बेस पे. इसके बेस पे है यहाँ पे ऐसा. फिर जब हीट ट्रांसफर होंगी तो धीरे 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 जो टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगा बच्चों? कम कम होते जाएगा. बढ़ेगा क्या? नहीं. क्योंकि हीट कहाँ से फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो वी हैव टू गेटिंग द ग्राफ इन दिस वे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑफ हीट डिसिपेशन फ्रॉम अ इनफाइनाइट लॉन्ग फिन. So this is the graph we have to getting. I draw the once again this graph. Yes or no? Yes. Such type of the temperature profile we have to getting here. Right? So here is the temperature, which one? TA. क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है गाइज, यू ऑब्जर्व हियर,
दिस लाइन इज टेम्परेचर लाइन वाई एक्सिस और ये क्या इसकी लेंथ है। तो जैसी जैसी लेंथ बढ़ेगी वैसा वैसा टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होते जाएगा। ऐसा अटैच है, इसका टेम्परेचर ज्यादा, ये इसको अटैच है तो बेस पे एकदम ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन जैसी जैसी लेंथ बढ़ती जाएंगी यहाँ पे 100, 80, 60, 50 और यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स। सो दैट्स व्हाई आई ड्रॉ द प्रोफाइल इन दिस वे। कम थिकनेस है, कम लेंथ है तो टेम्परेचर ज्यादा, एकदम जीरो है तो टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ पे है, बेस पे है। लेकिन जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाए, लेंथ बढ़ती जाएंगी वैसी वैसी इसका टेम्परेचर प्रोफाइल का ग्राफ क्या होगा, नीचे नीचे आएगा और हमारे को ग्राफ मिल गया एक्सपोनेंशियल। सो दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल्स। आवर लेंथ इज व्हाट इज इन्फिनिटी, द लेंथ इज इन्फिनिटी ऑफ अ स्पिन, दिस fins. Okay guys, so let's we solve this concept. What is the equation? This is the standard equation, theta is equal to c1 e to the power mx plus c2 e to the power minus mx. This is the standard derivation we already proved in our previous lecture guys. Okay, so now just I am assume the boundary conditions here, boundary conditions. So in boundary condition guys, what is, first I assume the x is equal to 0, means at the base of the fin what is the value of the x is here 0, because we consider the one dimensional. So what is the value of here x? X is equal to 0. So what is t is equal to t0 guys. So t is replaced by what is t0. So at this situation we know this formula, yes or no? Yes. What is the change in modification this formula guys? Theta becomes theta 0. Okay, what is this theta? Theta is t minus ta. This theta 0 becomes t0 minus ta guys. Yes or no? Yes. So what is the temperature? This ta is cancelled, so t is replaced by t0. In terms of theta, I write down the first theta graphs for this theta situation, because theta is nothing but t minus ta. This is the standard for a rectangular fin. But if you consider x is equal to 0 तो t बन गया t0, तो फिर थीटा बराबर क्या हो गया थीटा 0। थीटा की वैल्यू हमने लिखी, थीटा 0 की ये वैल्यू, तो t बराबर क्या आ गया हमारे पास में t0 आ गया गाइस। इसलिए हमको टेम्परेचर मिल गया ये ज्यादा वाला, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे कितना होगा 30 टेम्परेचर 30 होगा एटमॉस्फेरिक। देन आफ्टर दैट व्हाट इज हियर गाइस सेकंड केस, और ये टेम्परेचर कहाँ पे है, ये एट द बेस ऑफ द फिन। दिस ये जो है ये बेस है फिन का, दिस इज द बेस ऑफ फिन बराबर। और ये क्या है इसकी बच्चों, वॉल है, दिस इज द वॉल। अब यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन बाउंड्री, सेकंड क्या आएंगी, x की वैल्यू कितनी आएंगी बच्चों, इन्फिनिटी, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब फिन की जो लेंथ है वो कितनी बन गई अभी, इन्फिनिटी, मीन्स वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ द फिन, इट इज x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देन व्हाट इज द चेंज इन इक्वेशन, लुक एट हियर। सो दिस t is replaced by now what is ta. So this the temperature of the fins nothing but is equal to the atmospheric temperature guys now. Okay, so see here so theta is equal to what is theta 0. So theta means what is guys, theta means nothing but the t minus ta. Here is what is we getting, theta infinity is replaced by this, t is replaced by now what is ta. For a theta infinity situation, t is replaced by ta minus ta becomes 0. So t minus ta is equal to 0. So what is t is equal to ta guys. जब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तब ये ग्राफ कहाँ पे आके रुक गया बच्चों, यहाँ पे TA पे। तब ये टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई TA, यहाँ पे ये TA है और यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है T0। समझ में आ रहा सब? ओके, पहले केस में T की वैल्यू T0 फिन की
और बाद में जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी तब फिन का टेम्परेचर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स. ओके, सो आई ड्रॉ दिस टू केसेस, दिस वन एंड दिस. So after draw this condition, what is the change in equation number 1? So you see here guys, I remove this all the things, you write down in your books. So when x is equal to 0, once again, when x is equal to 0, so what is the change in equation number 1? You see guys here, theta is replaced by theta 0, c1 e to the power m into 0, yes or no? Yes, plus c2 e to the power minus m into 0. समझ में आ गया बच्चों क्या क्या मैंने? जब x इज इक्वल टू हो गया तो थीटा कितना हो जाता हमारे पास में, थीटा 0. ये हमने अभी सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 में क्या हुआ, थीटा रिप्लेस हो गया थीटा 0 से और x के जगह पे क्या आ गया, क्या है यहाँ पे 0 आ गया. सो व्हाट इज वी गेट नाउ, दिस वन. सो थीटा 0 e टू द पावर 0 मीन्स व्हाट इज 1, तो c1 प्लस c2. सपोज इक्वेशन नंबर 2 गाइज. Okay, we getting these equations. Now another conditions, what is x is equal to infinity. So when x is equal to infinity, what is the change in equation number 1? So equation 1 becomes, what is the change in guys tell me. So what is the change in that equation you guys, when x is equal to infinity? So this equation becomes c1 e to the power m, what is e to the power m infinity plus c2 e to the power minus infinity is equal to what is theta infinity. और what is the theta infinity we got here guys, theta infinity we got the 0. ये हमने अभी भी सॉल्व किया था. थीटा इन्फिनिटी कितना आया था मैं वापस बताता हूँ. थीटा इज इक्वल टू थीटा इन्फिनिटी, थीटा कितना रहता टी माइनस टी ए. तो यहाँ पे ये क्या था टी माइनस टी ए, तो यहाँ पे ये टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में टी ए माइनस टी ए कितना हो गया 0. तो थीटा की वैल्यू हो गई थी 0. कौन से सिचुएशन में, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इसलिए ये थीटा यहाँ से मैंने कैसे रिप्लेस हो जाएगा, अभी 0 से रिप्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया फिर 0 c1 e टू द पावर m इन्फिनिटी प्लस c2 e टू द पावर माइनस m इन्फिनिटी. सो व्हाट इज द चेंज इन इक्वेशन यू गाइस टेल मी. आफ्टर सॉल्विंग what is we get c1 e to the power m infinity. This e is equal to minus n infinity, how much it is 0. This is the rule of the mathematics. So plus 0 is equal to 0. So what is finally we also given, c1 is equal to also 0, right? So these are the simple mathematical term. e to the power minus m infinity, what is 0. So c1 e to the power minus infinity is equal to 0. So what is remaining? The remaining term is c1 e to the power m infinity is equal to 0. So divided by 0 means nothing, c1 is equal to 0 guys. और m क्या रहेगा हमारे पास में, वेरिएबल, वो तो चेंज होते रहेगा. तो c1 की वैल्यू क्या मिल गई हमारे को, 0 मिल गई. सो देन व्हाट इज, अब c1 0 मिल गया तो ये c1 को मैं कहाँ पुट करूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. तो देखिए अभी यहाँ पे, सो पुट c1 इन इक्वेशन नंबर 2. तो फिर क्या बचेगा देखिए, थीटा 0, यस और नो, यस. c1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 प्लस c2, तो c2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, थीटा 0, लाइक दैट. तो दो वैल्यू मिल गया हमारे को, c1 की 0, c2 की
theta 0. For which situation? This situation during the solving of boundary conditions, for which x is equal to 0 and for x is equal to infinity for these fins. What is the title? The heat dissipation from a infinite long fin, guys. Okay. So after getting this value, what is the change? So this C1 and C2, this both the values, very IMP, where is put? We have to put in equation number 1 value, one equation. So I am write down here, put C1 and C2 in equation 1. So what is the change in equation 1? See. So what is the change, guys? You see, theta is equal to C1 is 0 plus C2 is what is theta 0 into e to the power minus mx, right? We getting these relations. Do you got it? Theta is equal to theta plus theta 0 e to the power minus mx. So what is the remaining term now? Theta is equal to theta 0 e to the power minus mx, guys. So after getting this term, theta is equal to theta 0 e to the power minus mx by putting the boundary condition values C1 and C2. So after furthering solving, what is the theta? Theta means nothing but T minus TA, guys. Temperature of a fin minus atmospheric temperature is equal to theta is temperature at the base minus atmospheric e to the power minus mx. Okay. So what is e to the power minus mx, guys? It is T minus TA upon T0 minus TA. Very IMP derivations. This also asked in the exam, prove that e to the power minus mx is equal to T minus TA upon T0 minus TA. So you solve up to this. Now after later on, what is, we get another equations here. T minus TA upon T0 minus TA is equal to e to the power minus mx. Right? I erase these things. So we getting this equation, guys. So I also erase this top section also. So I am write down here T minus TA upon T0 minus TA is equal to e to the power minus mx, right? So after getting these equations, very IMP, T is the temperature of a fin, TA is the temperature of atmosphere, T0 is the temperature of a fin at the base, or ये TA is the temperature of surroundings, is equal to e to the power minus m into x. We know the value of the m. What is the value of the m is, guys? We already know, under root. We calculated also this value already in our previous lectures. It is under root HP K ACS, right? H is nothing but the heat transfer coefficient, P is the perimeter, K is the thermal conductivity, and AC is the cross-sectional area of the fins. So this M is fixed, not M is variable. M तो बदलते रहेगा बच्चों, जैसे जैसे हम फिन का डायमेंशन चेंज करेंगे तो ये M कांस्टेंट रहने वाला है क्या? नहीं, ये तो चेंज होगा.
कांस्टेंट क्या रह सकता है, टी ए कांस्टेंट रह सकता है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए बच्चों क्या चेंज होगा यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, वो आपके समझ में आएगा। अभी ये इक्वेशन को बाद में याद रखना, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, यू लुक एट दिस ग्राफ नाउ, आई ड्रॉ हियर, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे मैं ये टर्म लेता हूं अभी t माइनस टी ए, T0 माइनस टी ए, यहां पे लिख रहा हूं t माइनस टी ए अपॉन T0 माइनस टी ए। अब मुझे बताओ ये जो टर्म है इसका कोई डायमेंशन होगा क्या? नहीं, ये क्या है अपना डायमेंशनलेस नंबर, क्योंकि ऊपर भी टेम्परेचर है नीचे भी टेम्परेचर है, तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसल, एंड दिस इज द डायमेंशनलेस टर्म्स, डायमेंशन लेस term, there is no any dimensions. So this I consider along in y axis, so I am write down here guys, t minus ta upon T0 minus ta. Okay, this is the temperature T of a fins. ये डायरेक्शन में लेता हूं मैं x, फिन की थिकनेस कम हो रही क्या? नहीं, फिन की थिकनेस बढ़ती बढ़ती जा रही। अब यहां पे देखो यम हमारे पास में है वेरिएबल्स, यम इज वेरिएबल्स, तो यम की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं, 10, 20, 30 बढ़ाते जाऊंगा मैं, या फिर कम भी कर सकता हूं डिपेंडिंग अवर ओन चॉइस। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर कंसिडर किया बच्चों, सपोज यम की वैल्यू मैंने कंसिडर की m1 इज लेस देन m2, m2 इज लेस देन m3। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? m3 इज ग्रेटर देन m2, m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर ये है समझो 30, ये 20, तो ये 10, इस तरह से ऐसा मैंने लिखा ये रेशो। मतलब m क्या पैरामीटर है हमारा? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, पेरीमीटर, k और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो m की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सपोज ओके, वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ द m, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द m। पहले हमने m1 रखा सपोज 10, समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर m2 रखा मैंने 20, फिर m2 हमारे पास में है 30। m का यूनिट क्या रहेगा? पर मीटर लेंथ है इसका, ये पर मीटर्स। तो अब m चेंज कर रही है फिन के लिए, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा हमारे को? अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन यू सी, फॉर m1 वी गेटिंग सच एक्सपोनेंशियल ग्राफ, दिस इज फॉर m1 टेम्परेचर्स। अब e के पावर में क्या है बच्चों? माइनस है, तो माइनस में अगर मैं m की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा तो इधर की वैल्यू ये कम आएंगी, ये ज्यादा आएंगी, ये कम कम होती जाएंगी। ओके, तो m1 अगर मेरा 10 है तो ये यहाँ का ग्राफ है। अगर m1 की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, क्यों ग्राफ नीचे आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? माइनस। तो m2 के लिए ग्राफ मेरे पास में ऐसा आएगा, दिस इज फॉर m2, राइट। अगर मैंने m की वैल्यू बढ़ा दी तो ये वैल्यू जो है इसका जो आंसर है ये और कम हो जाएगा, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा एक्सपोनेंशियली, ये मिल जाएगा मुझे m3, राइट। क्योंकि थिकनेस जो है बच्चों वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। x बढ़ेगा m भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ का आंसर क्या होगा? कम। क्यों होगा कम? क्योंकि इसके सामने क्या लगा है? माइनस है। प्लस अगर रहता तो ये ग्राफ कैसा आता था? इस तरह से बढ़ते जाता था, इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे। लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्या होगा बच्चों? नीचे नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में माइनस साइन है। तो जब हमारे पास में इनफाइनाइट लेंथ है स्पिन की, ये फिन की, तो उसका टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होगा? कम कम। बेस पे एकदम ज्यादा टेम्परेचर, तो यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ से उससे कम, और यहाँ तक आते आते एकदम ही कम टेम्परेचर हो जाएगा एज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन दिस वे। ओके, सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फिन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस इन अ फिन। क्योंकि ये जो फिन मैं अटैच करूंगा
तो इसके अंदर तो हीट ट्रांसफर दोनों वे से होंगे बच्चों, कंडक्शन से भी होंगे और कन्वेक्शन से। देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये वॉल है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये इसको अटैच है। अगर आपने अगर बेस पे हाथ लगा लिया, ये बेस पे, तो आपको ज़्यादा जोर से चटका बैठेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो कम चटका बैठेगा क्योंकि यहाँ का कम टेम्परेचर है। यहाँ पे अगर लगाएंगे तो एकदम कम, और यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक फिन के अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा और हर जगह से, देखिए समझो प्रैक्टिकल, हर जगह से हीट क्या होंगी? लॉस। मतलब यहाँ से भी हीट लॉस होंगी कन्वेक्शन से, यहाँ से भी होंगी, यहाँ से भी होंगी, हर जगह से कन्वेक्शन से क्या होती जाएंगी बच्चों? हीट लॉस होती जाएंगी। मतलब कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफर हो रही फिन के अंदर, और हर जगह से, हर पॉइंट से, सराउंडिंग में भी हीट लॉस होती जा रही है। किससे? कन्वेक्शन से। तो यहां तक आते आते उसका टेम्परेचर क्या हो गया? एकदम कम हो गया। किसका? फिन का। क्योंकि तब तक उसने ये वॉल में की हीट पूरी सराउंडिंग में ट्रांसफर कर चुकी थी, इसलिए यहां तक आते आते वो टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया गाइज। तो फिर बच्चों देखिए, इसलिए हमारे को ऐसा ग्राफ मिला फॉर डिफरेंट पैरामीटर फॉर दिस यम, फॉर दिस सिचुएशन। किसका आंसर? इसका T माइनस टी ए अपॉन T0 माइनस टी ए। ये दो टर्म तो कांस्टेंट है, लेकिन ये और ये चेंज होती जाएंगी, इसमें यम और ये भी चेंज होते जाएगा। ओके गाइस, तो दिस ग्राफ इज आल्सो वेरी वेरी IMP। इसको मिटाता हूं अभी मैं। So you see here, if you connect this fin is here, so we know that after connecting these fins, so by the which mode of heat transfer? By the both the modes, conduction as well as convection, the heat is dissipated from the fin into the surroundings. So we have to write down here how the heat is flow. The heat is flow is by two mode of heat transfer. Heat is transfer by conduction across the root or base, across the root or base of fin। ठीक है, ये जो बेस है फिन का, यहां से कैसे हीट ट्रांसफर होंगी बच्चों? कंडक्शन से। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूं। और दूसरा कौन सा आएगा? जैसे जैसे हम फिन की लेंथ लेंगे तो हीट ट्रांसफर होंगी कौन से मोड से? कन्वेक्शन से। और बाद में फिर हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शंस from the surface of a fin to the surroundings। right? तो कितने केस यहाँ पे आ गए ये तो आपके पहले ही समझ में आ गया कि एक पहला केस है हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन अक्रॉस द रूट और बेस ऑफ द फिन, यहाँ से कंडक्शन से। लेकिन जब हम फिन का लेंथ बढ़ा रहे हैं तो फिर यहाँ पे कौन सी टर्म ऐड होगी बच्चों? यहाँ पे ऐड होगी अभी कन्वेक्शन सी, क्योंकि हम जब फिन अटैच करेंगे तो ये फिन जो है सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर कौन से मोड से करेंगी? कन्वेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे अब हीट जाएंगी सॉलिड टू फ्लूइड। So heat is transferred by convection from the surface of a fin to the surrounding guys. Okay, so you see here now। अब यहां पे हम पहली केस अज्यूम करते हैं, अभी ये ए वाली, इसको मैं सपोज ए नाम देता हूं, जिसको मैं बी देता हूं। सो लेट्स वी कंसिडर द केस ए। केस ए को मैंने कंसिडर किया बच्चों। अब
ए से जो हीट ट्रांसफर हो रही वो कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से हो रही, कंडक्शन से। तो जब जब कंडक्शन आएगा तब तब क्या लगेंगे हमारे पास में, फूरियर्स लॉ। तो यहाँ पे मैं फूरियर्स लॉ अप्लाई करूंगा कहाँ पे, एट द बेस ऑफ अ फिन, एट द बेस ऑफ अ फिन और रूट ऑफ अ फिन। सो लेट्स राइट डाउन द फूरियर्स लॉ। व्हाट इज क्यू फिन माइनस के ACS क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्टिव थिकनेस dt अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0 गाइस। यहां पे x इज इक्वल टू 0 यहां पे लिखा है मैंने एट द बेस। ओके, बेस बोले तो x की वैल्यू 0। तो फिर क्या आएगा देखिए, dt अपॉन dx, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0। तो मुझे अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमने पहले से इक्वेशन निकाल के रखे हैं। विच इक्वेशन यू सी हियर, t माइनस टी ए इज इक्वल टू T0 माइनस टी ए ई टू द पावर माइनस mx। This equation we already know, we already prove by the use of boundary phenomena. So let's we determine this value. Okay, so how to determine? Suppose we differentiate this equation with respect to x. So differentiate with respect to x. तो क्या आएगा फिर, dt अपॉन dx। ये कांस्टेंट है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0। इधर देखिए, अभी इधर क्या आएगा, ये टर्म यहाँ पे T0 माइनस टी ए। हाउ टू सॉल्व, यू लुक एट हियर। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे T0 माइनस टी ए, यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस mx। ये तो बाहर निकल गया कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो ये कंपोजिट फंक्शन कैसा आएगा देखिए फिर, T0 माइनस टी ए, मैथमेटिक्स आपको पता होगा डेरिवेटिव रूल, ई टू दी dx ई टू दी पावर माइनस mx। तो क्या आंसर आता है इसका बच्चों, ई टू दी पावर mx अपॉन यम। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ये ई टू दी पावर माइनस mx अपॉन माइनस यम। बाद में इसका और डेरिवेटिव निकलेगा तो यह आएगा फिर यम, और आगे जाके डी dx ऑफ x, तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मिल गया ई टू दी पावर mx अपॉन यम इंटू यम, और यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस। तो फिर क्या मिला बच्चों देखिए, dt अपॉन dx इज इक्वल टू, ये यम हो गया कैंसल, माइनस T0 माइनस टी ए ई टू दी पावर माइनस mx। ठीक है, अब यहां आगे देखिए, इसको अब मिटा देता हूं मैं। अब ये देखिए बच्चों, ये इक्वेशन जब मैंने लिखा तब x की वैल्यू मेरे पास में क्या है, अभी 0 है, क्योंकि मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, बेस पे, और बेस पे x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो फिर ये इक्वेशन में क्या चेंज आएगा देखिए, dt अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जो ये फूरियर्स लॉ में पुट करेंगे। इसको मैं बता देता हूँ, सपोज इक्वेशन नंबर ए समझने के लिए। तो फिर इसमें क्या चेंज आएगा देखिए, माइनस T0 माइनस टी ए, ओके, ई टू दी पावर माइनस यम इंटू एक्स रिप्लेस हो जाएगा बच्चों ये 0 से। तो फिर क्या बचा, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 0 1। तो ये बचा फिर माइनस T0 माइनस टी ए। गाइस समझ में आ गया, सिंपल रूल है मैथमेटिक्स के। यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस नहीं, यहाँ पे तो कुछ आएंगे ही नहीं अभी।
टी जीरो ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करिए, ई टू द पावर माइनस एम एक्स, यहाँ पे आ गया ये माइनस, ये समझ में आया ना आपको, माइनस, ये मैं डबल से सॉल्व करके देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना आपका। देखिए अभी देखिए टी जीरो टी ए, इसका आंसर आ गया ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, यस और नो, यस। और आगे जाके इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव के रूल देखिए, डी डेक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स, डेरिवेटिव के रूल बच्चों, तो ये आगे ई टू दी पावर एम एक्स और बाद में आएगा डी बाय डी एक्स एम एक्स। वो जो पहले बताया था वो मैंने इंटीग्रेशन बताया था, थोड़ा इसको करेक्ट कीजिए, दिस इज इन डेरिवेटिव फॉर्म। सो ई टू दी पावर एम एक्स इंटू यम आ जाएगा, तो ये आ गया फिर ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस यम गाइस, ठीक है। तो फिर ये बन गया हमारे पास टी जीरो माइनस टी ए इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू यम, और सामने मैंने लगा दिया यहाँ पे माइनस साइन। अब इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ज़ीरो और इंटू क्या है बच्चों, यम, तो ये आ गई ज़ीरो वैल्यू और ये हो गया इंटू यम। तो फाइनल टर्म हमको मिला डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टी ज़ीरो टी ए इंटू यम गाइस, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस यम इंटू जीरो, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, इंटू मल्टीप्लाई करके 1 हो गई, और ये यम, तो दिस इज द टर्म एज इट इज, वेरी सिंपल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखने का, ये सिंपल रूल है 10वीं 11वीं 12वीं का, ये 11वीं 12वीं का मैथ आपको पता है, यू नो वेरी वेल। सिर्फ इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डी डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, तो ये एक बार इसका डेरिवेटिव ऐसा आ गया, कंपोजिट फंक्शन इसलिए माइनस यम आ गया क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है। फिर यह आंसर मिला, फिर बाउंड्री कंडीशन काय के लिए बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो क्या मिलेगा फिर माइनस टी जीरो माइनस टी ए इंटू यम। अब ये वैल्यू हम उठाएंगे और इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में। तो देखिए अभी और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ये सिर्फ पढ़ रहे हैं हम पहले कंडक्शन के लिए, कौन से सिचुएशन के लिए, एट द बेस ऑफ अ फिन्स। तो देखिए अभी क्यू फिन इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस इंटू माइनस टी जीरो माइनस टी ए इंटू यम। ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, तो फिर क्यू फिन के ए सी एस इंटू टी जीरो माइनस टी ए इंटू यम गाइज। राइट, यम की वैल्यू हमको पता है, यम की वैल्यू पुट कीजिए, क्यू फिन के ए सी एस इंटू टी जीरो माइनस टी ए, यम इज रिप्लेस बाय अंडर रूट व्हाट इज पी एच के ए सी एस। राइट, अब आगे देखिए, अब ये के ए सी एस को हम 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, के ए सी एस इंटू अंडर रूट के ए सी एस। जैसे हमारे पास में ये 2 है तो इसको लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2 इन दिस वे, इंटू टी जीरो माइनस टी ए इंटू
PH अंडर रूट KACS। तो यहाँ पे ये टर्म और एक ये टर्म कैंसल हो गई, तो व्हाट इज द रिमेनिंग फाइनल रिमेनिंग क्यू फिन इज इक्वल टू T0 माइनस TA इंटू अंडर रूट व्हाट इज गाइज KACS PH। ओके, तो दिस इज द हीट ट्रांसफर थ्रू अ इनफाइनाइट लॉन्ग फिन बाय द मोड ऑफ कंडक्शंस। कितना आया? T0 माइनस TA इंटू अंडर रूट K मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर इंटू द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स। अब ये इक्वेशन मिला हमको कौन से सिचुएशन के लिए स्टूडेंट? कंडक्शन के लिए। अब हम कन्वेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा यही आंसर आएगा। देखो प्रूव करके बताते हैं। कन्वेक्शन के लिए आपने यहां तक डेरिवेशन किया एंड, लेकिन कन्वेक्शन में भी उतनी ही ट्रांसफर होंगी। कैसे होंगी तो चलो देखते हैं अभी। तो ये अभी तो कंडक्शन के लिए निकाले, अभी देखते हैं हम काय के लिए? कन्वेक्शन के लिए। यही फार्मूला मिलेगा। देखिए बच्चों, इसको मैं मिटाता अभी। आई इरेज दिस पोर्शंस। So we have to use now B case, केस B। कौन सा है बच्चों केस B? कन्वेक्शंस। क्योंकि जब हमने फिन्स लगाई यहाँ पे ये वॉल सरफेस को, तो जैसी जैसी इसकी लेंथ बढ़ी तो इसका एरिया कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? एरिया बढ़ गया। लेंथ बढ़ रही तो एरिया बढ़ते जा रहा। तो हर जगह पे से क्या ट्रांसफर हो रही? हीट ट्रांसफर होगी। कौन से मोड से? कन्वेक्शन मोड से। कहाँ पे? सराउंडिंग में। तो किस तरह से जा रही है देखिए अभी। तो कन्वेक्शन का क्या फार्मूला है बच्चों बताइए मुझे? क्यू फिन फॉर कन्वेक्शंस व्हाट इज द फार्मूला? एरिया इंटू एच इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस फिन का कितना आएगा? T माइनस TA। This is the standard formula. We already proved this formula during the convections by the Newton's law of cooling. Area multiplied by heat transfer coefficient into the temperature difference of a fin and atmospheric temperature. क्योंकि यह फिन का टेम्परेचर हमने बताया T से, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? A, और फिन का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। तो ये फिन से हीट कहाँ जाएंगी? सराउंडिंग में। फिन से कहाँ जाएंगी? हीट सराउंडिंग में, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर है अभी T, और ये फिन का टेम्परेचर बताया मैंने T से। T अगर है हमारे पास में 90, तो सराउंडिंग क्या है बच्चों? 30। तो हीट कहाँ से जाती है? 90 से 30 तक। ओके, सो यू सी हियर नाउ। सो क्यू फिन इज इक्वल टू H। वी नो द एरिया। व्हाट इज द एरिया? फार्मूला एरिया इज पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस P इंटू dx। Because we consider the small elements. Do you remember? Yes, we consider the small thickness dx perimeter into। अब ये जो फार्मूला है बच्चों रिप्लेस हो जाएगा T0 माइनस TA इज इक्वल टू E टू दी पावर माइनस mx से। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी बनाई थी, ये वाली T माइनस TA ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है डेरिवेशंस। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे शिफ्ट की। अब हम जो हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं, कन्वेक्शन क्या यहाँ पे है क्या? नहीं, कन्वेक्शन तो हर जगह से चल रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। कन्वेक्शन इज ऑकर थ्रू आउट द फिन्स। तो थ्रू आउट द फिन है मतलब टोटल फिन के लिए है। तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? साइन ऑफ इंटीग्रेशंस। तो इसकी लिमिट कहाँ से चेंज हो रही? x की लिमिट चेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी।
x पहले 0 है, बाद में x की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है. इनिशियली द लेंथ ऑफ द फिन इज 0 एंड देन फाइनली द length of the fin is infinity. So for total situation apply the sign of integration and change from 0 to infinity guys. So what is the equation now? अब यहाँ पे देखिए h कांस्टेंट, p कांस्टेंट, उसके बाद में ये डिफरेंस भी कांस्टेंट आ गया t0 माइनस टी ए, तो इंटीग्रेशन लग गया 0 टू इन्फिनिटी फॉर व्हाट इज e टू द पावर माइनस mx इंटू डी एक्स, क्योंकि dx बदलते जाएगा, dx फिक्स रहने वाला है क्या, नहीं, dx करते 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 पूरी लेंथ आ जाएगी, लेकिन बेस का टेम्परेचर फिक्स, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फिक्स, पेरीमीटर फिक्स और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी फिक्स, ये तो चेंज नहीं होंगे. तो देखिए इसको क्या मिलेगा, so q fin is equal to hp t0 minus ta. सॉल्व द इंटीग्रेशंस. क्या इंटीग्रेशन आएगा बच्चों इसका, e टू द पावर माइनस mx अपॉन माइनस m टू द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. यह है इंटीग्रेशंस. पिछले इसमें जो सॉल्व किया हमने वो डेरिवेटिव, तो अब इसको सॉल्व कीजिए. q fin hp t0 minus ta into put the limits e to the power minus m, x रिप्लेस हो जाएगा इन्फिनिटी से अपॉन माइनस m माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू 0 अपॉन माइनस m. अब e टू द पावर माइनस m इंटू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल बच्चों, 0 हो गई. तो क्या बचा फिर, q fin hp t0 माइनस ta इन ब्रैकेट 0 माइनस e टू द पावर माइनस m इंटू 0 इज इक्वल टू 1. तो फिर 1 अपॉन माइनस m, तो कितना मिला फिर देखिए, q fin इज इक्वल टू hp t0 माइनस ta माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन m गाइज. तो देखिए आगे, सो q fin hp t0 माइनस ta 1 अपॉन यम की क्या वैल्यू थी बच्चों, यम की वैल्यू थी हमारे पास में बताइए, hp अंडर रूट के ACS, राइट. तो इसको देखिए अभी सॉल्व करते हैं क्या आएगा. सिंपल मैथ लगा रहा हूं मैं. सो q fin इसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट में 2 बार, hp इंटू t0 माइनस ta, ये हो गया रेसिप्रोकल हो गया, ये आ गया ऊपर एक के ACS अपॉन अंडर रूट में क्या रहा बच्चों, hp. तो ये hp और ये hp हो गया कैंसल. तो फाइनली फिर क्या बचा बताइए, ये टर्म मिटा देता हूँ अभी, इसको लिख लीजिए नोटबुक में. सो q fin इज इक्वल टू अंडर रूट hp के ACS, ये दोनों को मैंने कंबाइन लिखा,
into T0 minus TA, what is this? So this is the end of derivations by convections. अब दोनों को कंपेयर कीजिए, कंडक्शन से और कन्वेक्शन से, दोनों के फार्मूले क्या है, सेम है। इसलिए ये फीन में से जो हीट ट्रांसफर होंगी कंडक्शन से और कन्वेक्शन से क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द लेंथ। अब यहाँ पे देखिए आगे जाके क्या कंक्लूजन हमको मिलता है। क्योंकि एक इक्वेशन हमने बनाया था T माइनस टी ए अपॉन T0 माइनस टी ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस mx, बराबर है। तो ये जब हमने इक्वेशन बनाया था प्रूव करने के लिए, तो ये इक्वेशन से हमने ऐसा कंक्लूजन बना लिया कि देयर इज नो नीड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अ फिन। सपोज इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ फिन, बहुत सारी लेंथ मैंने बढ़ा दी फिन की, तो अगर हम बहुत सारे दूर पे चले गए, अगर हम बहुत सारे एंड पे भी आ गए फिन के, तो यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर होंगी क्या, नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है ये सरफेस को अटैच। तो इनफाइनाइट लेंथ तक जाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हीट यहाँ तक पहुँचने के पहले ये आधे में से ही खत्म हो जाएंगी। कहाँ पे, मतलब यहाँ से ही हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यहाँ तक आने की आवश्यकता भी नहीं गिरेंगी उसको। बिफोर द लेंथ ऑफ अ फिन द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस सरफेस इनटू द सराउंडिंग्स। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज वी कंक्लूड देयर इज अ नो नीड ऑफ अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अ फिन्स, because before the length of a fins the heat is already dissipated into the surroundings. So therefore that's why we cannot design the length of a fin is infinite. ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, ये तो हम थेरोटिकल समझे इसको कंसेप्ट को, और थेरोटिकली हमारे समझ में आ गया, क्योंकि इसके पहले ही हीट ट्रांसफर होगी, ये इक्वेशन से हमको समझ में आ गया। यस और नो, यस। So here what is, क्योंकि जब तक, अब इसका टिप क्या, ये टिप है इसका फिन का, दिस इज द टिप, बराबर है। सो टेम्परेचर फॉल्स, जैसे जैसे हम जा रहे हैं, अब देखिए ग्राफ को समझिए, और ये टिप पे आ गए, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हो बच्चों, टेम्परेचर क्या होते जाएगा, कम कम होते जा रहा, फॉल्स होते जा रहा, कम कम होते जा रहा, बराबर है। अब ये इनफाइनाइट लेंथ है, ये मेजरेबल है क्या, नहीं, ये तो ऐसे आगे जाएंगी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आगे जाएंगी, इनफाइनाइट लेंथ है फिन की। तो इसके पहले ही टेम्परेचर क्या हो गया, पूरा का पूरा, मतलब हीट ट्रांसफर हो गई वॉल से कहा सराउंडिंग में, इसलिए हमको कोई आवश्यकता नहीं है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ फिन की। और उसके बाद में भी अगर हम देखेंगे, अब ये पूरी सीधी फिन है, रेक्टेंगुलर फिन, मतलब सबका एरिया कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ, बराबर है। अब पूरा फिन का एरिया अगर कांस्टेंट होगा तो मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, मटेरियल भी अगर ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी कैसी लगेगी बच्चों, ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि पूरा एरिया यहाँ से लेके तो सेम है। तो ये फार्मूले से और ये प्रॉब्लम से ये कंक्लूड हुआ कि कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रही वो तो पहले ही हो जा रही है, और जब हम टिप के तरफ बढ़ते हैं आगे आगे, तो वहाँ तक पहुँचने के पहले ही हीट ट्रांसफर हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा एरिया बड़ा होना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा एरिया बड़ा कर रहे हैं, मतलब मटेरियल खर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ा रहे। तो कॉस्ट कम करने के लिए हमने क्या किया, फिर हमने रेक्टेंगुलर फिन को रिप्लेस कर दिया, कौन से फिन में, अभी टेपर फिन में, बराबर है। तो जब हम टेपर फिन लगाएंगे तो यहाँ के लिए एरिया कैसा हो जाएगा, कम, एरिया लेस, तो मटेरियल भी क्या लगेगा बच्चों, लेस लगेगा, तो फिर कॉस्ट क्या हो जाएंगी,
लेस हो जाएंगे अपने आप। यस और नो? यस। तो इसलिए टेपर फिन हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट इन एवरी प्लेस टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम सरफेस इनटू द सराउंडिंग्स, क्योंकि यहाँ का जो लैटरल सरफेस है, लैटरल सरफेस पे ही ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर फिन यूज करेंगे क्या? फिर नहीं, हम टेपर्ड फिन यूज करेंगे। समझ में आया कंक्लूजन? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक्स। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। क्योंकि ये भी हमको और समझ में आ गया, क्योंकि ये यहाँ का जो पोर्शन है इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हीट ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आते आते अगर खत्म ही हो रहा है तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो फालतू में पैसे खर्चा कर रहे, कॉस्ट बढ़ा रहे, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसलिए टेपर फिन यूज करते बच्चों। समझ में आ गया? तो ये केस 1 मैंने आज आपको पढ़ाया। आई स्टॉप हियर। ओके, in next lecture we have to discuss the another case of a fins. Okay, out of 3, 1 today is completed. So I hope you should understand very well our next topic. What is we discuss? Heat dissipation from a insulated at the tip. Heat dissipation from a fin at the insulated at a tip. Tip को हम insulated कर देंगे अब। Okay, so if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.